یہ مصطفیٰ یہ وہی مصطفیٰ ہے جہاں پر دلی دنگے کرے گئے تھے، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو مارا کاٹا گیا تھا، کروڑوں کی پراپرٹی پھونکی گئی تھی، بہت سارے لوگوں کو آج تک جیلوں میں ڈالا گیا تھا۔ ہلو، نمشکار، میں آپ کے ساتھ سرویش کمار، TRTI ٹی وی پر آپ کا سواگت ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ایمن رضوی ایک بار پھر آپ کے سامنے، اور آج میں پہنچ چکی ہوں مصطفیٰ آباد، جہاں پر جہیز کے ویرودھ میں ایک ریلی نکالی جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ تمام لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہمیں ایک عائشہ عارف نام کی لڑکی نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، جس نے بڑے ہنستے مسکراتے خودکشی کری تھی۔ یہ خودکشی ایسی خودکشی تھی جس نے پورے سماج کو نہیں، پوری دنیا کو ایک میسج دیا تھا کہ دیکھو یہ بیٹیاں تمہاری وجہ سے ناراض ہو کے ہنس کر جا رہی ہیں۔ تو اس میں فیور میں، جہیز کے ویرودھ میں اب لوگ بہت زیادہ اویئر ہو چکے ہیں، اور آج میں مصطفیٰ آباد میں آپ کے سامنے ہوں، اور مصطفیٰ آباد میں یہاں پر کچھ ذمہ دار لوگوں نے، کچھ باعزت لوگوں نے، کچھ باضمیر لوگوں نے جہیز کے ویرودھ میں ایک ریلی نکالی ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ یہ مصطفیٰ آباد ہے، یہ وہی مصطفیٰ آباد ہے جہاں پر دلی دنگے کرے گئے تھے، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو مارا کاٹا گیا تھا، کروڑوں کی پراپرٹی پھونکی گئی تھی، بہت سارے لوگوں کو آج تک جیلوں میں ڈالا گیا تھا۔ میں ایمن رضوی مصطفیٰ آباد میں اس ریلی کا حصہ بننے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ یہ مصطفیٰ آباد ہے، یہاں پر عائشہ کے لیے، یا ان تمام عائشہ جیسی لڑکیوں کے لیے ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے جو جہیز کے نام پر خودکشی کرتی ہیں۔ شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ جہیز کے نام پر لگ بھگ 8000 سے زیادہ لڑکیاں خودکشی کرتی ہیں۔ دیکھیے، میں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ میں اس وقت مصطفیٰ آباد میں ہوں، جہاں پر جہیز کے ویرودھی ایک ریلی نکالی جا رہی ہے۔ ان کے ہاتھ میں بہت خوبصورت میسیج ہیں، اور یہ دنیا کو میسیج دے رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں ایک لڑکی چاہیے۔ آپ کو خود پتا ہوگا، جہیز جو لیتا ہے وہ ایک بھکاری ہے۔ اگر آپ اپنا جانور بھی خریدتے ہیں، کتا بلی بھی خریدتے ہیں، تو آپ اس کا کھانا پینا کچھ نہیں لیتے ہیں، آپ اس کو پالتے ہیں۔ لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ جب شادی کرتے ہیں تو لڑکی بھی لیتے ہیں، پڑھی لکھی بھی لیتے ہیں، خوبصورت بھی مانگتے ہیں، اور ساری زندگی آپ مسلسل اس سے جہیز مانگتے رہتے ہیں۔ میں دکھا رہی تھی کہ بہت پیارے یہاں پر میسیج کنوے کر رکھے ہیں ان لوگوں نے، بہت پیارے میسیج لکھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بینر ہیں، اور یہ ایک جہیز کے ویرودھی ایک پرچار کر رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ابھی ہم سے جڑے ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی زندگی میں ہمارے ساتھ، ہمارے اس مشن میں بہت سارے لوگ جڑیں گے، کیونکہ یہ ایک مشن ہے، یہ ایک آواز ہے، یہ ایک گونج ہے جو دور دور تک جائے گی۔ اور یہ ریلی جو ہے اب آپ کو دلی کے ہر سڑک پہ، ہر علاقے میں نظر آئے گی۔ آج یہ آپ کو مصطفیٰ آباد میں نظر آ رہی ہے، آج کے بعد یہ آپ کو چاندنی چوک میں نظر آئے گی، پھر یہ آپ کو اوکھلا میں نظر آئے گی۔ اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ آج سے عہد کریں، قسم کھائیں کہ نہیں، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں لڑکی چاہیے۔ اور آپ کو اگر پتہ ہو کہ اسلام میں جہیز حرام ہے، اسلام میں جہیز نہیں ہے۔ ایک والدین جو آپ کو اپنی بیٹی بہت اچھے سے پڑھا لکھا کر دیتے ہیں، آپ کو بہت سبھی سماج کی بیٹی دیتے ہیں، ایجوکیٹڈ کرتے ہیں، دین اسلام پر چلنا سکھاتے ہیں، اپنا گھر بار چلانا سکھاتے ہیں، وہ اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے پاس آتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان لڑکیوں کو پھر جہیز کے لیے پریشان کرا جاتا ہے؟ میرے سامعین، میرے سننے والوں، شاید آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ بھارت میں 8000 لڑکیاں روزانہ جہیز کے نام پر یا تو مار دی جاتی ہیں یا مر جاتی ہیں۔ میں ایمن رضوی لگاتار آپ کو ہر ظلم کے خلاف ہر جگہ جا کر دکھاتی ہوں کہ دیکھو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم چل رہا ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، اور ابھی بھی وقت ہے کہ آپ سدھر جائیں اور اپنی جنت پکی کر لیں۔ کیونکہ جب آپ کسی انسان کو مارتے ہیں، کسی کی بیٹی کو مارتے ہیں، تو آپ یقین کریے بہت سارے ارمانوں کو مارتے ہیں، پوری انسانیت کو قتل کر دیتے ہیں۔ جہیز کیا ہوتا ہے؟ ایک مردہ سامان ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں کیا اتنی پاور نہیں ہے؟ کیا ان کو اپنے قوت بازو پر اتنا یقین نہیں ہے کہ وہ اپنے بہا پر کچھ سامان خرید سکیں؟ ڈبل بیڈ، گاڑی واڑی، جو بھی جہیز میں چلتا ہے، کیا وہ لوگ اتنے زبردست نہیں ہوتے کہ وہ خرید لیں؟
अगर नहीं खरीद सकते तो मेरी नज़र में वो मर्द नहीं होते। जो घर औरत की कमाई से चलता हो, जो घर औरत के जहेज से डेवलप होता हो या सजता हो, मेरी नज़र में वो इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि जहेज एक लानत है और इसका बाइकॉट करें। जहेज आप अवॉइड करें। आप देखिए कि इस जहेज की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो मिसयूज़ होती हैं। जो लड़कियां शर्री होती हैं वो चाहे जहेज भी ना लेकर आएँ, लेकिन अपने घर वालों को मुसलसल परेशान करती हैं, अपने ससुराल वालों को परेशान करती हैं, अपने शौहर को परेशान करती हैं। तो ये जो जहेज एक लानत है, ये हर तरफ से इस वक्त आपको बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है, आपके समाज को खोखला कर रहा है, आपके इस्लाम को बदनाम कर रहा है, आपके इस्लाम को दागदार कर रहा है। क्योंकि जब कोई भी मुसलमान लड़की ये स्टेप उठाती है तो सीधा टारगेट लोग इस्लाम को करते हैं और कहते हैं कि देखो इनके इस्लाम में इस तरह होता है। मैं अहमद रिजवी इस वक्त आपको मुस्तफाबाद से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ पर जहेज के खिलाफ एक रैली निकल रही है और मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि इस रैली का हिस्सा बनी हूँ। यहाँ पर बहुत मोअज़्ज़िज़ हजरात हैं जिनके हाथों में हदीसें हैं और ये सब तमाम लोग जहेज के विरोध में रैलियाँ निकाल रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी जहेज को मना करो, बेटी बचाओ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, सब लोग पसीने में शराबोश हैं। मैं खुद यहाँ पर 2.5-3 घंटे ओखला से यहाँ पर आई हूँ और इस रैली को ज्वाइन करा है, क्योंकि ये समाज को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। अगर क्या ही अच्छा होगा पूरा समाज, मैं मुसलमानों को नहीं कहती, मैं नॉन मुस्लिम को भी कहती हूँ, क्या ही अच्छा होगा अगर हम इस जहेज का बॉयकॉट करें तो कितना अच्छा होगा। वो कितने खुश होंगी वो लड़कियाँ, कितने सेटल्ड होंगे वो लोग, कितने खुशी में आएगा ये समाज। क्योंकि रोज़ाना जो आप एक रेशियो देखिए कि 8,000 लड़कियाँ जो मारी जा रही हैं, शायद हम उनको भी बचा पाएँ इस मुर्दा सामान के पीछे। जो जहेज लेता है वो इंसान हो ही नहीं सकता, वो फ़कीर होता है, उसको अपने क़ुव्वत बाजू पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो जहेज लेता है। बारात का कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है। हमारे इस्लाम में बारात है ही नहीं। हमारे इस्लाम में माइयो, मंढा, चौथी, चाले कुछ नहीं है। हमारा इस्लाम सादगी को कहता है कि जितना सादगी पसंद होगा आपका निकाह उतना कामयाब होगा। आप निकाह को आम करें, जिना खुद रुखसत हो जाएगा। हाँ, हमारे इस्लाम में जो आया है वो वलीमा आया है। वलीमे में आप करोड़ों खर्चा करें, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप वलीमे में खर्चा कर सकते हैं। तो मैं अहमद रिजवी लगातार आपको बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए कि समाज से बुराइयों को किस तरह दूर करा जाता है। और मैं इस वक्त मुस्तफाबाद में एक रैली के साथ हूँ, जहाँ पर जहेज के विरोधी एक रैली करी जा रही है। और ये रैली करने की जो एक सीख दी है वो हमें आयशा ने दी है, जिसने साबरमती में कूदकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि आरिफ नाम का शौहर उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता था, जहेज के लिए मारता पीटता था। इसलिए उस लड़की ने बहुत हंसी और खुशी साबरमती में जाकर अपनी जान दे दी और उसने समाज को एक मैसेज दिया कि देखो तुम बेगैरत हो चुके हो, तुम्हारी नौजवान नस्ल बेगैरत हो चुकी है, तुम जहेज पे पलना चाहते हो, तुम जहेज को प्रमोट करते हो। इसलिए मैं इस समाज को हंसते हंसते रुखसत करती हूँ, इस समाज पे लानतें भेजती हूँ, इस समाज को चुल्लू भर पानी की सीख देती हूँ। और वो हंसते हंसते पानी में कूद गई थी। आयशा आरिफ की खुदकुशी के बाद एक ट्रेंड चल गया कि धड़ाधड़ लड़कियों ने खुदकुशी करनी शुरू कर दी जो अपनी ज़िंदगी से परेशान थी। मैं आयशा आरिफ को सपोर्ट नहीं करती, मैं खुद कहती हूँ हाँ आयशा ने गलत करा था, उसको अपनी अनमोल ज़िंदगी एक बेगैरत इंसान, एक बेमोल इंसान के ऊपर ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आयशा आरिफ की खुदकुशी इस समाज को जगा कर चली गई और बहुत से लोग ऐसे हैं जो रैलियाँ निकाल रहे हैं जहेज के विरोध में और कह रहे हैं कि नहीं जहेज नहीं लेना चाहिए। और मैं खुद अहमद रिजवी ये वाली बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अवॉइड करें जहेज को। जहेज एक लानत है जो सिर्फ समाज में बर्बादी लेकर आता है। जहेज आपको भिखारी बनाता है। जो लोग जहेज लेते हैं मेरी नज़र में वो लोग भिखारी से ज़्यादा कुछ नहीं होते, क्योंकि आपको अपने क़ुव्वत बाजू पर यकीन नहीं है। आपको इतना भी यकीन नहीं है कि 10-12 हज़ार का बिस्तर आप ले पाएंगे जिस पर आप सोएंगे। कैसे मर्द होते हो तुम कि जिस जहेज़ का तुम डबल बेड लेते हो, जिस जहेज़ के तुम कपड़े पहनते हो, जिन जहेज़ पे तुम चलते हो, और फिर तुम उस लड़की का हाथ पकड़कर तमाम
तमाम ज़िंदगी में गुजारने के वादे करते हो कि हम तुझे खुश रखेंगे, हम तुझे ये करेंगे। अरे जो मर्द अपनी कमाई का डबल बेड ना ले सके वो क्या खाक खुश रखेगा लड़की को? तो जहेज़ का बाइकआउट करिए। जहेज़ एक लानत है। एम्बुलेंस को रास्ता दे दो भैया, एम्बुलेंस का रास्ता दे दो। अरे भैया गैस सिलेंडर वालों, एम्बुलेंस का रास्ता दो भाई। एक ये छोटी सी शुरुआत है दहेज के खिलाफ। दहेज एक सामाजिक बुराई है, दहेज एक अभिशाप है, दहेज एक नासूर है। भाई एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अरे नहीं, एक मिनट रुक जाओ। दहेज अभिशाप है, दहेज लेना पाप है, दहेज पूरे देश के खिलाफ है, सामाजिक अभिशाप है, सामाजिक बुराई है। हम सब मर्द हैं, मर्द बनकर हिस्सा लें कि हम जहेज नहीं लेंगे। आओ भाई प्रतिज्ञा करो। मैं एमन रिजवी इस वक्त मुस्तफाबाद में तिरपाल फैक्ट्री के पास से आपको लाइव दिखा रही हूँ कि जहाँ पर जहेज़ के खिलाफ एक रैली निकल रही है और जहेज़ को बाइकआउट करने की बात की जा रही है। और कमाल की बात यह है कि ये रैली निकालने वाले मेरे तमाम मर्द हजरात भाई हैं जो खुद कह रहे हैं कि नहीं, हमें जहेज़ नहीं चाहिए, हमें जहेज़ नहीं लेना चाहिए। इस रैली को प्रमोट करने वाले, ऑर्गेनाइज़ करने वाले मेरे इसी समाज के वो समझदार बाइज़्ज़त लोग हैं जो जहेज़ को हमेशा बाइकआउट करते हैं और जिनके घरों में गालिबन जहेज़ नहीं लिया जाता है और वो सादगी से निकाह को प्रमोट कर रहे हैं। मैं एमन रिजवी लगातार आपको सोशल मीडिया पर और ज़मीन पर जाकर दिखाने की कोशिश करती हूँ कि समाज में क्या क्या बुराइयाँ हैं और हम उन्हें किस तरीके से कौन सा एक ऐसा अमली जामा हो जिनसे हम उनको दूर कर सकते हैं। और उसके लिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ आपको दिल में तय करना होगा कि नहीं, हमें जहेज़ नहीं चाहिए। और इस काम के लिए मेरे नौजवान भाइयों को, मेरे गयूर नौजवानों को आगे आना होगा और उनको अपनी अपनी फैमिली में कहना होगा कि नहीं, हम बिना जहेज़ के शादी करेंगे। हमें एक अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, सुलझी हुई लड़की चाहिए अम्मा, हमें जहेज़ नहीं चाहिए। क्योंकि जहेज़ एक ऐसी लानत है, एक ऐसा कैंसर है जो नस्लों दर नस्लों को बर्बाद कर देता है, आपके ख़ानदान को बर्बाद कर देता है। और जो लोग जहेज़ लेते हैं उनसे मेरा खुदा भी कभी खुश नहीं होता। किस तरह शादियां करते हैं वो गरीब वालिदैन जो सब कुछ बेच देते हैं एक बेटी की शादी में, और अगली बेटी की शादी में फिर वो इंतज़ार करते हैं कि कहीं से कोई मुआवजा हो और वो अपनी बेटी के लिए फिर दोबारा से वही प्रोसेस, वही जहेज़ जोड़ने का सामान शुरू कर सकें। तो जहेज़ जो एक लानत है, आप तमाम लोगों को मिलकर इसका बाइकआउट करना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, हमें जहेज़ नहीं चाहिए, हमें एक अच्छी लड़की चाहिए। क्योंकि लड़की आपको नस्ल चलाने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट मिलती है कि निकाह को आम करो, निकाह को आम करो, ज़िना खुद रुखसत हो जाएगा, ये मेरा कलाम पाक कहता है। लेकिन आप लोगों ने क्या करा, इस वक्त समाज में ज़िना आम हो चुका है और निकाह बहुत मुश्किल हो चुका है। लोग करोड़ों करोड़ों की शादी करते हैं और उनके चक्कर में जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं वो बैठी रह जाती हैं, उनकी शादियां तक नहीं हो पाती। तो इस वजह से आप लोग जहेज़ का बाइकआउट करें और निकाह को आम करें। ये रैली मुस्तफाबाद में ऑर्गेनाइज़ करी गई है। काफ़ी सारे इसमें मर्द हजरात हैं जो जहेज़ के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं, जहेज़ के ख़िलाफ़ बहुत माकूल हदीसें कलाम पाक से निकाल कर इन लोगों ने बोर्ड बनवा रखे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हमें जहेज़ नहीं चाहिए, जहेज़ एक लानत है, जहेज़ एक कैंसर है। मैं एमन रिजवी मुस्तफाबाद से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ आएँ, ज्वाइन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।